A very good morning to all of you dear students. Welcome back to Gyan Manjari Modern School YouTube channel. Myself Disha Pandya and today I am going to teach you English of Standard 3rd. In our previous session we have completed unit number 6 Lali and the Lioness of Gir with its hard word and glossary words. Okay, and I have already given the hard words and glossary words in your fair book to write. Okay, so today we are going to start the exercises of this unit. So let's get started. So first of all, in the exercises, question number 1 from Let's Understand, and that is question number 1. First of all, I am going to read the question. Please listen to me carefully. Read the given sentences and then answer the questions that follow. यानी कि आपको यहाँ पर जो भी सेंटेंस दिया गया है एक, वो फ्रॉम द लेसन है, राइट। तो उसको आपको अच्छे से रीड करना है, फिर समझना है कि ये सेंटेंस कौन बोला था, किसको बोला था, एंड देन यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस. सो द लाइन इज, द सेंटेंस इज, ओ आई कांट बेयर टू थिंक ऑफ लाली स्पेंडिंग द नाइट ऑल अलोन इन द जंगल. यानी कि आई एम गोइंग टू ट्रांसलेट दिस लाइन कि मैं लाली को जंगल के अंदर पूरी रात अकेला नहीं छोड़ सकती. ठीक है. सो यू हैव टू गिव द आंसर फ्रॉम दिस सेंटेंस एंड द क्वेश्चंस आर, हु सेड दिस टू वोम. सो ये लाइन लेसन में कौन बोला था और उसने किसको कही थी. ओके, सो आई एम गोइंग टू राइट द आंसर्स हियर. यू हैव टू राइट क्वेश्चंस एंड आंसर्स बोथ इन योर फेयर बुक. ओके, सो आई एम गोइंग टू राइट द क्वेश्चन एंड आंसर्स. And here our line is, oh, I can't bear, from question number 1, bear to think of Lali spending the night all alone in the jungle. Okay, so from this line question rises, number A, who said this to whom. यानी कि ये ऊपर वाली जो लाइन है वो कौन बोला था और उसने ये लाइन किसको कही थी. सो who said this, ये बोली थी माशिरा. ओके, और इसने किसको कहा था, ये अपने डैड को, यानी कि अपने फादर, जो कि ट्राइबल ऑफ चीफ जंगल के थे, उसको उसने बोला था. सो वी कैन राइट द आंसर, माशेरा said this to her father. ओके, और उसके फादर का नाम क्या था, Chusad. So we can write his name also. Now number B. Who is Lali? Okay, ये जो लाली है वो कौन थी लाली. It was a little lamb. Okay, Lali is a lamb. यानी कि जो भेड़ बकरियां होती है उसका जो बच्चा होता है मेमना, उसको बोलते हैं लैम्ब. क्वेश्चन नंबर C, what had happened to her. what had happened to her यानी कि किसके साथ, लाली के साथ क्या हुआ था. सो क्या हुआ था कि हर रोज़ की तरह वो भी ग्रेस करने के लिए जंगल में गई थी और रिटर्न नहीं हुई थी. शी वॉज नॉट रिटर्न फ्रॉम लास्ट
night. Okay, so we can write the answer like this. She had not returned in this evening. Okay. Now last number D. Was Lally found? यानी कि क्या फिर क्या हुआ था at the end of the lesson? Is Lally found? यानी कि लाली क्या मिली थी? Yes, Lally was found in the end. वो मिल गई थी. Question number D, and here its answer. Yes, Lally was found the next day. Okay, so here is the answer of question number 1. From exercises, let's understand. Read the given sentence, then answer the questions that follow. So write down in your fair book, okay, with good handwriting, and yes, you have to write questions and answers both. Okay. Now we are moving forward to question number 2. In question number 2, I am going to read the question first. Answer the following questions in a sentence or 2. यहाँ पर आपको कुछ questions दिए गए हैं जिसके आपको 1 या तो 2 sentences में आंसर देने हैं. Okay, so very first one is, who was Masira? Masira कौन थी? She was a young girl, okay, of, एंड वो कहाँ पर रहती थी? गिर फॉरेस्ट के अंदर. ओके, तो हमें मासिरा का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखना है, एंड आई एम गोइंग टू राइट द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर ए. मासिरा वॉज अ यंग गर्ल. शी लिव्ड इन द गिर फॉरेस्ट विथ हर फादर जुसाद. मासिरा वॉज अ यंग गर्ल. She lived in the Gir forest with her father Shusad. ओके, वो अपने पिता के साथ गिर फॉरेस्ट में रहती थी. क्वेश्चन नंबर बी, वाई डिड सी लिव्ड इन अ फॉरेस्ट? वो जंगल में क्यों रहती थी? तो रिमेंबर करो लेसन को. क्यों रहती थी? कि उसके जो पापा है, उसके जो डैड है, वो क्या थे? वो ट्राइबल चीफ ऑफ द फॉरेस्ट, यानी कि वो आदिवासी जो समूह होता है उसके चीफ मिनिस्टर थे. तो ये जो आदिवासी समूह होते हैं वो ज़्यादातर कहाँ पर रहते हैं? फॉरेस्ट एरियाज़ में. ठीक है, दैट्स वाई सी हैव टू लिव विथ हिज फादर इन द फॉरेस्ट. ओके, सो आई एम गोइंग टू राइट द आंसर ऑफ नंबर बी हियर.
Okay. She lived in a forest because her father was the tribal chief. She lived in the forest because her father was the tribal chief. Now question number C. Who was her best friend? जो मासिरा है उसका बेस्ट फ्रेंड कौन था? लाली. A little lamb called Lali was best friend of Mashira. Who was her best friend? A little lamb. And a little lamb called Lali was her best friend. Question number D. What did Masira do to know where Lali was? मासिरा ने क्या किया? मासिरा क्या करती थी कि वो जान पाए कि लाली कहाँ पर है. ठीक है, लाली ग्लैम था जो कि बोल नहीं सकता था. ठीक है, तो अगर वो खो जाए तो जल्दी से मिल जाए, इसलिए मासिरा ने क्या किया था? तो उसने क्या किया था? उसने उसके गले के ऊपर एक पट्टा बांध दिया था. ओके, मासिरा टाइड अ बेल्ट अराउंड its neck, okay, to know where she was. Okay, so I am going to write the answer. Mashira tied a bell around Lali's neck to know where she was. ताकि बेल में जब घंटी बजे तो माशिरा को पता चल जाए कि यहाँ से आवाज़ आ रही है, तो उसका जो बेस्ट फ्रेंड लैम्प है लाली, वो शायद इस तरफ होगा. दैट्स वाई शी टाइड अ बेल अराउंड लालीज नेक टू नो वेयर वॉज शी. Okay, I am giving you some time to write this question answers A to D. Write down in your fair notebook.
Okay, now move forward to the next question. Question number E. Where did Jusat find Lali? जुसात को लाली कहाँ पर मिली थी? At the clearing of the forest. कहाँ पर मिली थी उसको लाली? At the clearing of the forest. Okay. So Jusat find Lali in a clearing of the forest, यानी कि जहाँ पर फॉरेस्ट ख़त्म होता है या तो शुरू होता है वहाँ से उसको लाली मिली थी. Now number F. And the question is, who was in front of Lali? जब जुसात को लाली मिल गई at the clearing of the forest, तब उसने क्या देखा? लाली के सामने कौन था? A big lioness. He was standing in front of लाली. कौन था वहाँ पर? एक बड़ी वाली लायनस थी, शेरनी, जो कि लाली के सामने खड़ी थी. ओके, so we can write the answer. A big lioness is a big lioness was in front of the Lali. Answer of question number G. And the question is, what did Lali do when the lioness came towards her? ओके, जब लाइनस लाली के सामने आ गई तब लाली ने क्या किया? ओके, क्या किया? सी वॉज ब्लीटिंग पिटीफुली, यानी कि वो दर्द से कर्राने लगी. ठीक है, सो वी कैन राइट द आंसर. व्हेन द लाइनस केम टुवर्ड्स हर, व्हेन द लाइनस came towards her, Lali bleated, P-L-E-T-E-D, pitifully, P-I-T-I-F-U-L-L-Y, पिटीफुली यानी कि दर्द से कर्राने लगी, डर से कर्राने लगी. अगर लाइनस उसके सामने आ जाती है तो ऑफ कोर्स उसको डर तो लगेगा ही. ठीक है, सो वो दर्द से कर्राने लगी. कर्राना यानी कि इस तरह की आवाज़ निकलना, दर्द वाली. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर H. डिड द लाइनस ईट लाली? क्या लाइनस ने लाली को खा लिया? व्हाट डिड शी डू? और उसने क्या किया? किसने, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? लाइनस की. ओके, सो क्या खाया था लाइनस ने लाली को? नहीं, उसने नहीं खाया था, बल्कि उसके सामने से निकलकर वो दूर चली गई थी. ठीक है, नो
Thalinus did not eat lali. No, the lioness did not eat the lali. She turned and walked away. यानी कि उसने लाली को नहीं खाया. शी टर्न्ड यानी कि वो घूम गई, टर्न हो गई, एंड शी वॉक अवे और दूर चली गई. सो हियर क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. जो कि आपको आपके फेयर बुक में लिखना है वो कंप्लीट हुआ. ओके, क्वेश्चन नंबर ए से लेकर क्वेश्चन नंबर एच तक आपको आपकी फेयर बुक में विथ गुड हैंड राइटिंग लिखना है. आई एम गिविंग यू सम टाइम टू राइट द क्वेश्चन आंसर्स. ओके, सो राइट डाउन क्विकली. Now we are moving forward to the next question. From this question you have to write only in your term book. You don't have to write in your English fair book. Okay, you have to write the answers only in your term book. Now we are moving forward to next exercise, and the name of the exercise is let's build words. And here we are going to do question number 1. Okay, और ये क्वेश्चन आपको आपकी टर्म बुक में ही करना है, फेयर बुक में नहीं करना है. So first of all I am going to read the question. Please listen to me carefully. There are some unusual phrases in this story. Can you match the phrases with their meaning? Okay, यहाँ पर एक बॉक्स आपको दिया गया है match the following में, और यहाँ पर कॉलम ए एंड कॉलम बी में आपको कॉलम ए के अंदर कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं और कॉलम बी में उसके मीनिंग शो किए गए हैं. ओके, सो आपको राइट फ्रेज के साथ उसका राइट मीनिंग ज्वाइन करना है. राइट फ्रेज के सामने उसका राइट मीनिंग आपको लिखना है. सो आई एम गोइंग टू रीड कॉलम नंबर ए फर्स्ट. मेड हिज ब्लड फ्रीज. Number A, made his blood freeze. Number B, her heart sank. Number C, her face lit up. Number D, he was heartbroken. Okay, so ये जो सारे phrases है उसके meaning आपको ढूंढकर यहाँ पर लिखने हैं. So I am going to write answers of let's build words question number 1 on page number 43. Let's build words. Question number 1.
column A, column B. Okay, so I'm going to write answers. Here's our answer. So number A, made his blood freeze. Made his blood freeze. So made his blood freeze. तो यहाँ पर क्या आएगा? आंसर ए के साथ में आएगा नंबर 4 and it is he was afraid. Okay, made his blood freeze यानी कि उसका खून जम गया, तो इसका आंसर क्या होगा? he was afraid. इसका मतलब क्या होता है? made his blood freeze का मतलब होता है he was afraid कि वो डर गया. नंबर बी, her heart sank. her heart sank. तो इसका आंसर क्या होगा? नंबर 1, she lost यानी कि उसने आशा छोड़ दी. her heart sank. नंबर सी, her face lit up. her face lit up. उसका चेहरा चमक गया. सो यहाँ पर क्या आएगा? नंबर 2, she was happy. she was happy. And the last, number D, he was heartbroken. he was heartbroken. तो यहाँ पर क्या आएगा? he was very sad. नंबर 3, he was very sad. So here let's build word. Question number A completed. Okay, आपको क्या करना है कि A के सामने 4 नंबर लिखना है, B के सामने 1 नंबर, C के सामने 2 नंबर एंड D के साथ में 3 नंबर. ओके, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मैच करके सब लिखा है, आपको आपके हिसाब से लिखना है. Okay, now let's move forward. Now, from let's build word, we are going to do question number 2, spelling. Question number 2. Okay, I am going to read the question first. How many words do you know that have a Z in them? All the answers to these clues have a Z in them. Can you guess? यानी कि आपको यहाँ पर ये कहा गया है कि आप ऐसे कितने लेटर्स जानते हो, कितने वर्ड्स ऐसे जानते हो जिस वर्ड के अंदर Z आता हो, Z फॉर ज़ेब्रा.
ओके। तो यहाँ पर आपको कुछ ब्रेक कर करके वर्ड्स दिए गए हैं, ओके, और उसके सामने उसका क्लू भी दिया गया है कि ये वाला वर्ड्स कौन सा है। तो आपको जो वर्ड दिया गया है उसके अंदर मिसिंग लेटर को फिल करना है और एक मीनिंगफुल वर्ड कंप्लीट करना है, ओके। सो आई एम गोइंग टू राइट द क्वेश्चंस। ओके, सो यहाँ पर ये जो लेटर्स है वो आपको दिए गए हैं और मिसिंग लेटर में आपको लेटर फिल करने हैं और जो क्लू है उसके अकॉर्डिंग एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। सो आई एम गोइंग टू रीड नंबर ए फर्स्ट। द साउंड अ बी मैक्स, बी यानी कि मधुमक्खी जो साउंड करती है उसको क्या कहा जाता है? बज। आ गया जेड वाला वर्ड, बज यानी कि जो साउंड मधुमक्खियाँ बीज क्रिएट करती है उसको बोला जाता है बज। नाउ नंबर बी, टू बिकम सॉलिड, सॉलिड बनना, सख्त बन जाना, तो उसको हम क्या कहेंगे? एफ आर डबल ई, एफ आर डबल ई जेड ई, ओके। तो यहाँ पर भी जेड आ गया, फ्रीज, टू बिकम सॉलिड। नंबर सी, टू ईट ग्रास, घास पत्तियाँ खाना, तो उसको हम क्या कहेंगे? ग्रेज, जी आर ए जेड ई, ग्रेज यानी कि घास चारा चरना। नाउ नंबर डी, अ लाइट विंड यानी कि जो हल्की सी पवन बहती हो उसको हम क्या बोलेंगे? ब्रीज। क्या बोलेंगे? ब्रीज, बी आर डबल ई जेड ई, ब्रीज। देन नंबर ई, अ हॉर्स लाइक एनिमल दैट हैज ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स, एक हॉर्स जैसा एनिमल जिसके बैक के ऊपर वाइट एंड ब्लैक स्ट्रिप्स होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऐसा एनिमल कौन सा है जो कि ऑलरेडी आपको पिक्चर में दिया गया है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम जेब्रा, जेड ई बी आर ए। एंड नंबर एफ, अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर केप्ट फॉर पीपल टू सी, ऐसी जगह जहाँ पर एनिमल्स को रखा जाता है लोगों को देखने के लिए, उसको क्या कहेंगे हम? जू, ठीक है, जेड डबल ओ। सो हियर अवर क्वेश्चन नंबर 2 spelling is also completed. Now it's time for your homework, and today's your homework is write down question answers of lesson 2 times in your rough book। एक बार तो आपने अभी आपके फेयर बुक में तो कर ही लिया है, लेकिन होमवर्क में अगेन आपको 2 टाइम्स आपकी रफ बुक में करना है, ओके। Write question answer of this lesson 2 times in your rough book. Okay, so here I am going to end this session. See you in our next class. Till then, stay home, stay safe, have a good day.